Hello everyone and welcome to our channel Concept Harbor. Today we are going to look into the syllabus of class 11th economics. So let's get started. As you can see, the syllabus of economics of class 11th is divided into two parts. First one is statistics for economics and the second one is introductory microeconomics. Both carries equal weightage. So we will start with introductory microeconomics and gradually we will move towards statistics. So before uh, before learning about introductory microeconomics, I would like to tell you some basic concept about economics. So in this video we will cover what is economics, what is economics, what is the meaning of economic problem, why does economic problem arises, central problem of an economy, and branches of economics. So let's start with the basic definition of economics. But before we jump into the formal definition of economics, let me ask you a question. Have you ever wondered why prices of petrol or vegetable keeps changing? Why the price of vegetable or fruit are different at different point of time in a year? Why the prices of fruits and vegetable are different in same season over different years? Well, economic will help you answer all of these questions. As many of us might be knowing that Adam Smith is the father of modern economics. Economics comes from the ancient Greek word oikonomikos. Oikonomikos. If we divide this word oikonomikos into two parts, it will be oikos, which means household, and nomikos, which means management. So putting these two terms together, we get the literal meaning of oikonomikos, that is the task of managing a household. This is what economics does. If we see the formal definition of economics, it is the study of how people make decision in the face of scarcity. Scarcity means shortage of certain commodity. As we all know, we all have unlimited demands. Human have unlimited desires, but in order to meet these unlimited desires, we do not have unlimited resource, we have limited resource. There is scarcity of resources. So in such a situation, we have to make decisions. सो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसमें कि हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ह्यूमंस अपने लिमिटेड रिसोर्स को अनलिमिटेड वांट्स को मीट करने में यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से, इस तरीके से ताकि कंज्यूमर जो है सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर सके, प्रोड्यूसर प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके और सोसाइटी सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज कर सके. अब हम यही क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो कंज्यूमर जब भी कुछ भी कंज्यूम करता है तो वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम करता है. अगर प्रोड्यूसर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करता है तो वो उसका मेन एम होता है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके. और इसी तरीके से जो सोसाइटी का मेन एम होता है वो सोशल वेलफेयर गेन करना होता है. तो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इकोनॉमिक्स हेल्प करता है स्टडी करने में ह्यूमन बिहेवियर को इस तरीके से ताकि जो ह्यूमन बीइंग है वो स्कैर्स रिसोर्स को अनलिमिटेड वांट्स में इस तरीके से डिवाइड करे ताकि कंज्यूमर जो है मैक्सिमाइज कर ले अपना सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर ले और सोसाइटी सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज कर ले. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the meaning of economic problem and why does economic problem arise? So economic problem is basically problem of making choices. अब हम चॉइस क्यों बना रहे हैं? चॉइस हमें चूज़ करने की क्या ज़रूरत है? हमें चूज़ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड और उसको हम डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं. बट जो हमारा ह्यूमन वांट है वो है अनलिमिटेड. सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने के तीन बेसिक रीजन है. फर्स्ट इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, सेकेंड दैट रिसोर्स कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट uses, and the third one is human wants are unlimited.
जो फर्स्ट रीजन है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्स का सप्लाई कम है, बट सिर्फ रिसोर्स का सप्लाई कम है इस वजह से स्कार्सिटी नहीं हो जाती। जैसे कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ रॉटन एप्पल और स्टेल वेजिटेबल और ओल्ड मॉडल ऑफ मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कार्स। तो अगर हम इन सब का सप्लाई देखें तो शॉर्ट है, लेकिन इनका डिमांड भी नहीं है। तो क्योंकि इनका डिमांड नहीं है तो इसीलिए हम शॉर्ट सप्लाई को स्कार्सिटी से रिलेट नहीं कर सकते। तो शॉर्ट सप्लाई तभी स्कार्सिटी में कन्वर्ट होगा जब उसका डिमांड होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट रीजन इज रिसोर्सेज कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। सो जब हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है और हम उसको डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में ला सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्वियसली हमें चॉइस बनानी ही पड़ेगी, हमें चूज करना पड़ेगा कि हमें किस यूज में, हमें किन किन चीज़ों में हमें यूज करना है रिसोर्सेज का पहले। और हम इस तरीके से चूज करेंगे ताकि हमारा जो सेटिस्फैक्शन है हम मैक्सिमम कर सके, उसको मैक्सिमाइज कर सके। और ये चॉइस कैसे होगा, इट विल बी बेस्ड ऑन व्हाट, इट विल बी बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ योर डिजायर, योर द intensity of your demand and the priority of your needs. Last reason for economic problem is human wants. अब human wants क्या है, अनलिमिटेड है human wants। और ये ह्यूमन का साइकोलॉजिकल बिहेवियर है दैट एज सुन एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर न्यू वांट विल टेक प्लेस। तो ये जो है, जो ह्यूमन का ये जो एवर एवर ग्रोइंग जो डिजायर्स है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। जैसे एक वांट पूरी हो जाएगी वैसे ही नेक्स्ट डिजायर अराइज हो जाएगी। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। जैसे कि हमारे पास अभी 50 रुपीज़ है सपोज, बट वी हैव टू बाय अ नोटबुक, चॉकलेट्स, पेन, चिप्स एंड पेंसिल कलर बॉक्स। सो आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स अब हमें देखना है कि हम यूजिंग दिस 50 रुपीज़ हाउ वी विल मैक्सिमाइज आर सेटिस्फैक्शन। और हम इसको हम कैसे, हम इन डिफरेंट डिमांड्स में से हम कैसे चूज करेंगे, इट विल बी बेस्ड ऑन आर priority or intensity of want. So suppose if we are going to the school and I am going to the school और मेरे पास पेन नहीं है, then my priority will be to buy a pen. So using this 50 rupees I will buy a pen instead of other things. वैसे ही अगर मैं कहीं पिकनिक के लिए जा रही हूँ तो आई विल नॉट प्रायोरिटाइज बाइंग अ पेन ओवर चॉकलेट और चिप्स। तो इस सिचुएशन में मेरे को चॉकलेट या चिप्स मैं खरीदूंगी यूजिंग दिस 50 रुपीज़। सिमिलरली अगर हम हाउस होल्ड लेवल पे देखते हैं, व्हेन यूजिंग वाइल थिंकिंग अबाउट हाउ टू स्पेंड आर इनकम, हम ये देखेंगे कि देर आर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ सच ऑफ आर इनकम। जैसे कि वी वॉन्ट टू बाय हाउस, we want to buy a car, we want to buy different luxury things, but at the same time we also have to buy our daily requirements. So उसमें हम प्रायोरिटाइज करेंगे तो हमारा जो सबसे पहला नीड होता है कि हम अपना डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। तो उसके लिए पहले हम अपना रिसोर्स निकालेंगे, अपने इनकम में से पैसे निकालेंगे। तो हमारा इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो रहा है जिसमें हमें चॉइस बनानी पड़ रही है। और ये चॉइस हमें क्यों बनानी पड़ रही है, क्योंकि हमारा इनकम अनलिमिटेड नहीं है। अगर हमारा इनकम अनलिमिटेड होता तो हम तो सब कुछ ही खरीद सकते थे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स इज सिमिलर टू व्हेन आर मदर और हमारे घर में जो भी खाना बनाते हैं, जैसे ही वो किचन में एंटर करते हैं उनके दिमाग में पहले 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि मेरे को खाना क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। दूसरा वो क्वेश्चन सोचते हैं कि कैसे बनाना है। और थर्ड वो सोचते हैं कि जब खाना बन जाता है तो मैं उसको कैसे डिवाइड करूँ, किसको कितना फूड का पोर्शन में किसको कितना प्रोवाइड करूँ। इन द सिमिलर वे जो हमारा इकोनॉमी है उसमें भी 3 प्रॉब्लम अराइज होती है। द फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन।
सो दिस इज अबाउट डिसाइडिंग कि हमें क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स, सो वी हैव टू मेक चॉइस एंड डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ गुड वी हैव टू प्रोड्यूस। सो इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या उसको कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथ हो गया, फोन्स हो गया, या कैपिटल गुड प्रोड्यूस करना चाहिए, या वॉर गुड प्रोड्यूस करना चाहिए जो कि हम वॉर टाइम में यूज़ कर सके। दूसरा, या उसको एक इकोनॉमी को एसेंशियल गुड प्रोड्यूस करना चाहिए या लग्जरी गुड प्रोड्यूस करना चाहिए। सो ये डिसीजन कैसे होगा? दिस डिसीजन ऑफ एन इकोनॉमी विल डिपेंड ऑन द नीड, रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटीज ऑफ अ कंट्री। जैसे कि सपोज एक कंट्री किसी वॉर में है, तो उसको कैपिटल गुड को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ओवर कंज्यूमर गुड। अगर किसी कंट्री में वॉर नहीं है तो वो ऑब्वियसली कंज्यूमर गुड को प्रायोरिटाइज करेगा ओवर कैपिटल गुड्स। अगर कोई सपोज कंट्री में पुअर पीपल बहुत ज़्यादा है, तो वो असेंशियल गुड पे प्रायोरिटाइज करेंगे। लेकिन अगर उसी कंट्री में ज़्यादा रिच पीपल हैं तो वो लग्जरी गुड को प्रायोरिटाइज करेंगे। नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हम कैसे प्रोड्यूस करें। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर two techniques of production, that is labor intensive technique and capital intensive technique. Labor intensive technique is technique which uses more labor and less machinery, while on the other hand capital intensive technique uses more machinery and uses less of labor. The choice depends on the availability of resource. अभी ये जैसे कि इंडिया जैसी कंट्री की अगर हम बात करें, तो इंडिया जैसी कंट्री में लेबर बहुत ज़्यादा है। तो लेबर बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है? जो इंडिया है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगा, और जैसे यूएस है वहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे यूएस में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होगा फॉर प्रोडक्शन। नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम इज़ फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब हमने जितना प्रोड्यूस करना था प्रोड्यूस कर लिया, अब हमने कैसे प्रोड्यूस करना था वो भी डिसाइड कर लिया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो हमने प्रोड्यूस किया है प्रोडक्ट, अब वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पॉपुलेशन। हर एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि कितना टोटल आउटपुट में से कितना पुअर के पास जाएगा, कितना रिच के पास जाएगा, कितना अमाउंट ऑफ आउटपुट लेबर लेगा, कितना अमाउंट ऑफ आउटपुट एंटरप्रेन्योर लेगा, कितना शेयर। इसका मतलब है कि कितना इनकम जो हमने जनरेट किया है इस आउटपुट से, कितना लेबर के पास जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, कितना लैंड को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, और कितना कैपिटल लेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट, और कितना एंटरप्रेन्योर लेगा in the form of profit. So this is what this third central problem of economy tells us. Now we will see ki how types of economy is classified based on these three central problems. There are three types of central problems, and based on these three central problems we have three economies also. The first one is market economy, which is also called capitalist economy. The second is centrally planned economy, which is also called socialist economy, and the third one is mixed economy. First one is market economy, which is capitalist economy. In capitalist economy, the decision maker is what? The decision maker is market. So market will decide, and it will and how it will solve all the three problems, all the three central problem. For what to produce, it will produce what the consumer will demand. How to produce, the firm will choose what is the cheapest method to produce. And for whom to produce, it will produce only for those who can pay
to get these goods. In US, Australia and Japan, in these three countries, this type of economies is followed. Next, we will move to centrally planned economy, that is socialist economy. Here the decision maker is government or central authority. Now, how this type of economy will solve its central problems? What to produce, the government will decide what to produce based on what the national priority is. How to produce, government will select the प्रोडक्शन टेक्निक फॉर एफिशिएंट एंड इक्विटेबल यूजेस. तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इक्विटेबल यूजेस पे फोकस किया जाता है, यहाँ पे सोसाइटी पे फोकस किया जाता है, यहाँ पे पर्सनल प्रॉफिट पे फोकस नहीं किया जाता. फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यहाँ पे एबिलिटी टू पे के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे नीड ऑफ पीपल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा. एंड दिस वॉज फॉलोड बाय these two countries, the former USSR and North Korea. Former USSR means currently Russia and जो other countries जो disintegrate हो गए थे from USSR. Next economy is mixed economy. Mixed economy क्या होता है? Mixed economy में the decision maker is both government and private sector. Here both private and public sector both coexist. यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है? यहाँ पे मार्केट विल डिसाइड कि कितना गुड प्रोड्यूस करेंगे और क्या गुड प्रोड्यूस करेंगे, बट यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है. हाउ टू प्रोड्यूस, चॉइस बाय प्राइवेट सेक्टर. कितना कैसे प्रोड्यूस करना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर, बट गवर्नमेंट हेल्प कर सकता है या गाइड कर सकता है प्राइवेट सेक्टर को टू determine the technique of production. Now for whom to produce, यहाँ पे both the market purchasing power and government welfare schemes or subsidy coexist. So this type of economy, the example of this mixed type of economy is India, France, UK. As we can see that इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर भी है, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी है. इंडिया में प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से चीज़ें प्रोड्यूस करता है और गवर्नमेंट सेक्टर उसको रेगुलेट करता है. नॉट एवरीथिंग, बट कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट सेक्टर रेगुलेट करता है. मूविंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, branches of economics. What is branches of there are two branches of economics, microeconomics and macroeconomics. The word micro means small, macro means large. तो micro means microeconomics में हम क्या करते हैं? In microeconomics we study individual units like consumer, firm, market. और यहाँ पे हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं? डिमांड, सप्लाई या प्राइस ऑफ इंडिविजुअल गुड्स पे. और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वी स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल. हम पूरी इकोनॉमी को होल करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी नहीं करते. तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी हैव फोकस ऑन नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा. With this we have completed all the topics related to basic concepts of economics. So in the next video we will start with introductory microeconomics. Thank you. Please follow for more such videos.